A very good evening to everyone who is watching over here. I am welcoming you to Biocatalyst. Today is the first lecture of cell and the first target to be hidden in order to crack NEET 2026. So, let's crack together. Let's start with the first introductory part of the cell, which is said that when you look around, you see both living and non living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate things that it does not, which have the living things? यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग जो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग को देखते हैं वो मेजरली किस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, वो क्या चीज़ को डिफरेंशिएट करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है. सो सभी चीज़ का एक मोल होता है एंड हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो मोल है वो है सेल. Cell is the structural and functional unit of all living organisms. We all know this common definition since from the childhood, and it is exactly what I mean, that cell is the main structural and functional unit of all living organisms. So as a cell is the one which creates the huge difference between the living and non-living things. So let's dive into what is cell. Here it is described about the unicellular organism who are capable of the independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of the cell does not ensure the independent living. Hence, a cell is the fundamental structural and the functional unit of all living organisms. Hence, a cell is the structural and functional living of all organisms. Is that clear? What is cell? Unicellular organisms are independent existence. They can do the work independently and also they perform the essential functionalities of life. When I say essential functionalities, what does it mean? It actually means about the respiration, excretion and reproduction. रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन प्रोसीजर प्लस एनर्जी का प्रोसीजर भी इंक्लूडेड है. सो ये तीन है हमारे एकदम like a major thing of in order to continue the life. So ये तीन चीज़ जो एकदम मेजर है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है एक सिंगल सेल की मदद से. एंड hence a cell is the fundamental structure. वो जो मैंने बोला cell is the structure and functional living thing. Anton von Leeuwenhoek first saw and described the life cell. जो सेल होता है हमारा एंटन वॉन लेवेनहुक मतलब ये जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है. ये जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल है वो किसने डिस्कवर किया है? एंटन वॉन लेवेनहुक है. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? सेल के अंदर का न्यूक्लियस. एंड देन ये चीज़ डिस्कवर करने में क्या चीज़ जो सबसे मदद की है वो है एक माइक्रोस्कोप. हाँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग एक सेल को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ना, वरना हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. Now let's just move forward to cell theory. What it said, 1838. Here it's the important date, okay? Important date and important person. 1838. Matthias Schleiden, a German botanist, who was he? He was a German botanist which examined a large number of the plants and observed that all the plants are composed of that of the different kinds of that of the thing which cells from that of the tissues of the plant. मतलब क्या उन्होंने क्या देखा था? वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे तो उन्होंने एक सेल प्लांट लिया, उसके सारे सेल के साथ कंपेयर किया और उन्होंने देखा कि डिफरेंट काइंड नर्व सेल से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. तो उन्होंने ये देखा. And in the later time, Theodor Schwann, in that of the year 1839. Who was he? He was a German botanist which studied the different types of the animal cell. And reported that the cell had a thin outer layer which is today known as that of the plasma membrane. हमारे सेल के अंदर क्या है? thin outer layer है which is in today known as that of the cell plasma membrane. The presence of the cell wall is a unique character of the plant cell. हमारे जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल है उसके बाहर भी एक है, बहुत बड़ा हो गया है. वेट, उसके बाहर भी एक है. लाइक दिस इज़ आवर सेल and this is our cell wall. Okay,
सो ये जो सेल वाली चीज़ है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, ठीक है, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल में ये चीज़ एब्सेंट होता है। उन्होंने ये डिस्कवर किया है। द सेल वॉल इज a unique character of the plant. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of the animal and plant are composed of that of the cell and product of cell. बॉडी क्या होता है? एक सेल का कंपोजिशन होता है और इसका प्रोडक्ट होता है। श्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। श्लेडन एंड श्वान इन दोनों ने एक साथ मिलकर एक सेल थ्योरी दिया है, बट उन्होंने जो सेल थ्योरी दिया था उसमें सेल का ओरिजिन कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो इसकी वजह से रुडोल्फ विर्को ने इन द ईयर 1855 in the year 1855 he first explained that the cells divide and the new cells are formed। मतलब रुडोल्फ विर्को ने पहली बार जब बहुत तेजीब से एकदम देखा था सभी चीज़ों को, तब उन्होंने पहली बार ये कंक्लूशन लाया क्या कि सेल जो होता है वो हम लोग का एक एग्जिस्टिंग जो सेल होता है प्रीवियस के उसके अंडर ही आता है उसका ओरिजिन, या फिर सेल का जो ब्रेक डाउन होता है उसके बाद दो डॉटर सेल्स होते हैं वही से सेल का ओरिजिन हुआ है। मतलब सेल ऐसे कुछ छूमंतर से नहीं आया गया है, वो बहुत सालों से चल रहा है कि एक सेल आया उसके बाद दूसरा सेल हुआ तीसरा सेल हुआ, ऐसे चलता जा रहा है। उन्होंने उसके लैंग्वेज में क्या बोला? Ovinus cellulae e cellulae. He modified the hypothesis and later then he just modified the hypothesis which has been given by Schleiden and Schwann and give the final cell theory, that is all living organisms are composed of the cell and product of cell and all cell arise from the pre-existing cell. Now let's move forward to the overview of the cell, and I hope the origin and the cell theory part of the cell is very clear, and if it is not then let me know your doubt in the comment section. Okay, now let's come towards an overview of the cell. You have earlier observed a cell in an onion peel or human chick cell under the microscope. Let us recollect the structure. The onion cell, which is the typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within its cell membrane. The cell of the human chick have an outer membrane of that of the delimiting structure of the cell inside the each cell, which has that of the dense membrane bound structure called as the nucleus. हम लोगों ने 9-10 में एक किया था ना एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे बोला था कि ऑनियन सेल को पिल करो, फिर उसको अच्छे से वॉश करके उसके अंदर स्टेनिंग डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। तो हमने क्या देखा था? एक हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, सेम ह्यूमन सेल मतलब ह्यूमन चिक से लेंगे तो भी वही सब चीज़ दिखाई देगा, बट जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा सेल वॉल का। यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है, बार बार मुड़ जा रहा है यार। ओके व्हाटएवर, यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है। तो cells have that of the membrane bound. This nuclei contains that of the chromosome which in turn contain the genetic material. अब हमारा जो genetic material है वो किधर रहता है? Cell, nucleus, DNA. That's the genetic material. Is that clear? So our genetic material, that is जेनेटिक मटेरियल क्या हम लोग कहते हैं ना कि ओ ये बच्चे को देखो एकदम अपने बाबा के ऊपर गया है, तो कैसे कह सकते हैं कि एक जो नया ह्यूमन बींग है किसी और ह्यूमन बींग का रेप्लिका है, वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये चीज़ बोला गया है इधर। एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल DNA. Cells that have the membrane-bound nuclei are called as a eukaryotic cell, which has that of the lack membrane-bound nucleus are known as that of the prokaryotic cell. मतलब सेल के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेल के क्या होता है? 2 टाइप्स होते हैं, ये रब कर रही हूँ मैं। सेल के 2 टाइप्स होता है, एक में जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और दूसरे में जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जो जिधर मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो यूकैरियोटिक सेल है और जिधर नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक है। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन कौन लाता है? वो राइबोसोम लाता है, और लेटर हम लोग और एक ऑर्गेनेली है वो भी लाता होगा। तो राइबोसोम का पहले देख लेते हैं हम लोग।
द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरन ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड प्लेंट्स। हम लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेल के अंदर का जो पार्ट है, ये जो साइटोप्लाज्म है उधर ही सब कुछ जो मोल झोल होता है उसके अंदर ही होता है, हम लोगों को पता है ये चीज़, है ना। एंड वो क्या है, वेरियस केमिकल रिएक्शन, मतलब वही ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो उसके अंदर ही होता है। एंड क्यों होता है, ताकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको लिविंग स्टेट में रख सके हम लोग। पूरा हो गया, अच्छा व्हाटएवर। Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles। मैंने जो बोला था कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड, ही जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एंड दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर के आगे जाके। बट हम लोगों को क्या पता है, प्रोकैरियोटिक सेल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। हम लोग की चीज़ पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बट हियर कम्स द राइबोसोम विच क्रिएट्स द एक्सेप्शन। राइबोसोम और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो कहाँ मिलना चाहिए था, प्रोकैरियोटिक में। बट राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, बोथ सी both as eukaryotic as well as prokaryotic। Within the cell ribosome are found not only in cytoplasm। सेल के अंदर राइबोसोम हम लोग सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाते, इन जनरल हम लोग को कहाँ मतलब जो ऑर्गेनेल्स है कहाँ मिलते हैं, वो लोग साइटोप्लाज्म के अंदर। बट राइबोसोम एक ऐसा चीज़ है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, बट वो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। एंड देन एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन, एनिमल सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल में एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, वो है कि सेंट्रोजोम विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे, ये जो डॉटर सेल है, ठीक है, उसको डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाना होता है। मैंने बोला था कि सेल थ्योरी में भी ऐसे काम होता है। तो वो जो डिवाइड करना ये सब करना वो कौन करता है, वो सेंट्रोजोम करता है, ठीक है। Cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma. Mycoplasma the smallest cell वो बहुत छोटू सा होता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। एंड ये जो अभी आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड बैक्टीरिया आएगा, शेप्स एंड साइजेस ऑफ बैक्टीरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं एग्जाम में। सो ये रट्टा मान लेना, बस इन वे रट्टा मान लेना कि किसका क्या शेप है, किसका क्या लेंथ है। सो माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट इज 0.3 माइक्रोमीटर, बट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से कंपेयर करो तो बड़ा है, 3 to 5 माइक्रोमीटर का है, देखते हैं। हाँ देखो 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है एक बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये हम सभी को पता है, बच्चे से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ये सभी को पता है, ठीक ना। And then among multicellular organisms, human red blood cell have the 7.7 micrometer in diameter. Nerve cells are of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc like, ये देखो shape है सेल की, ये भी important है। Disc like and may vary with that of the function they perform। ये जो different क्यों है, जैसे कि हम लोग पता है कि राइबोसोम क्या है, बाइकॉनकेव इन शेप है। कि अब पहले से बाइकॉनकेव था, नहीं, पहले राइबोसोम कुछ ऐसा दिखता, सॉरी आरबीसी कुछ ऐसा दिखता था। इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। बट न्यूक्लियस जब बाहर गया तब ये ऐसा दिखने लगा, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर स्टोर कर सकें और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना पाए। सो क्यों ऐसा शेप का हुआ, उसके फंक्शन की वजह से। वैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स चेंजेस देयर शेप फॉर परफॉर्मिंग द perfect type of functionalities or their reserved functionalities। Now let's come to prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया का मेनली प्रोकैरियोटिक सेल ही कहा जाता है। वो इतना एडवांस नहीं होते यूकैरियोटिक सेल, दैट इज़ हमारी की तरह, वो बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है। तो जैसे बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन अलगे अलगे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ आ गया। दे आर जनरली स्मॉलर इन शेप इन रिस्पेक्ट टू द यूकैरियोटिक एंड दे रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड यूकैरियोट्स टेक like less time in order to reproduce। This is the major difference, okay।
And then the four basic shapes of the vector, they have the basic shapes, that is bacillus, rod, spiral and spiralium. These are the shape of them. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibits a wide variety of the shape and function, but the like जो functionality है वो kind of similar होता है, ऐसा कुछ major difference नहीं होता है, but they have different or variation in their shape. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Mycoplasma में कोई kind of cell wall नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? माइक्रोप्लाज्मा ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो रेड डॉट जो देख रहे हो, ये जो रेड डॉट है उससे भी, जो छोटा छोटा रेड डॉट है उससे भी बहुत छोटा है माइक्रोप्लाज्मा. मैंने जो ड्रॉ करी उससे 100x टाइम्स छोटा होता है. क्यों? उसका तो शेप ही पता नहीं कितना छोटू सा होता है. इसके वजह से, इतना छोटे शेप की वजह से सेल वॉल कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते ना, सेल वॉल देने की कोई जगह नहीं बची. सो इसी वजह से इसके पास कुछ सेल वॉल नहीं होता है. द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल वॉल इज दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उन लोगों के पास कुछ वेल डिफाइंड, हमारे प्लांट सेल के अंदर जैसे एक वेल डिफाइंड से न्यूक्लियस होता है, उन लोगों के पास नहीं होता है. एंड देन नॉट इन्वॉल्व द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड. हमारे जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. बट इन लोगों के पास कुछ ऐसा वेल डिफाइंड कुछ स्पेस नहीं होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को रख सकते हैं. तो इन अ वे वी कैन से दैट genetic material is typically naked. And they have also another structure apart from the main DNA which is known as the plasmid. वो सर्कुलर होता है, लाइक ऐसे 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 होता है. तो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है? इधर लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड का कन्फर्स अ सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर. वो एक यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को. ठीक है, जो बैक्टीरिया को जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देता है, मेनली जो देता है वो है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. लाइक हम लोग जब कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं ना कि वो ये दवाई तो पहले आपने दिया था तभी काम करके आया था, बट अगली बार जब मैं ली हूँ अब ये चीज़ तो ये काम नहीं कर रहा. क्यों काम नहीं कर रहा? मेडिसिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट क्या कहते हैं बाकी लोग की बॉडी में रेजिस्टेंट हो गया. तो एक्चुअली बॉडी रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंट नहीं होता है, बट जो बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हम लोग वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो रेजिस्टेंट होते जाता है. क्यों? कैसे हो सकता है? वो प्लाज्मिड के हेल्प से होता है. तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन को चेंज कर देता है. तो वही चीज़ है, ये जो मेन फंक्शन है बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है. And DNA is used in order to monitor the vectorial transformation within that of the foreign DNA. DNA से monitor कर सकते हैं हम लोग. Nuclear membrane is found in the eukaryote. We all know that eukaryote is the double membrane structure and hence nuclear membrane is also found in eukaryotes. No organelles like the ones in the eukaryote are found in that of the prokaryotic cell except for ribosome. हम लोग कोई काइंड ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे राइबोसोम के अलावा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट्स आर समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूशन. दे हैव द इंक्लूशन बॉडीज, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इंक्लूशन क्या होता है. एंड देन अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड दे आर एसेंशियली हेल्प इन दैट ऑफ द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब देखो मेसोसोम क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना हमारा, मतलब सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, उसका सॉरी ये जो सेल मेम्ब्रेन है मैं क्या करूँगी, ये कंप्लीट नहीं करूँगी, ना करके क्या करूँगी, ऐसे 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 इनफोल्डिंग्स दे दूँगी. तो ये जो काइंड ऑफ इनफोल्डिंग्स है उसको ही मेसोसोम कहते हैं. वो क्यों कहते हैं? दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. उससे क्या होता है ना, स्पेस इंक्रीज हो जाता है. उन लोगों को जो काम करना होता है, वो रिएक्शन करना होता है, उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है. वो क्या करते हैं, मेसोसोम क्रिएट कर देते हैं जिसके लिए वो लोग और ज़्यादा एरिया मिल पाए. Cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, are particularly the bacterial cell, have a chemical complex called as the envelope. They have an envelope, okay? And this cell envelope consists of the tightly bound three-layer structure, that is the outermost glycocalyx followed by cell wall and the plasma membrane. 3 लेयर का होता है. देखो 1 2
तीन, एकदम आउटर मोस्ट का जो होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। एकदम आउटर मोस्ट का हमारा होता है ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेकंड मोस्ट होता है उसका सेल वन एंड दूसरा मतलब इनर वाला होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर है देखो ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन बट दे एक्ट ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पे है कुछ समझने वाली चीज़ है। हम लोग स्कूटी का एग्जांपल लेते हैं, स्कूटी बाइक जो भी है, हम लोगों को क्या पता है, एक हाथ में हम लोग एस्केलेटर दबाते हैं, दूसरे हाथ में इन केस ऑफ स्कूटी, ठीक है, दूसरे हाथ में क्या दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्रेक नहीं दबाए और एस्केलेटर सिर्फ दबाए तो क्या होगा, स्कूटी बहुत तेज़ी से सामने चला जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ऑन द अदर हैंड इफ़ हम लोग एस्केलेटर नहीं दबाते सिर्फ ब्रेक दबाते तो फिर स्कूटी आगे ही नहीं बढ़ेगा। पर हम लोग जब दोनों ही एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट स्पीड लिमिट से वो आगे जाता है। तो वैसे ही ऑल दो तीनों लेयर के फंक्शन डिफरेंट है बट वो तीन एक साथ काम करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म एज द सिंगल यूनिट, ताकि जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से फुलफ़िल हो। तो ऐसे हम लोगों को भी एक साथ ही सभी काम करने चाहिए, एक के बाद एक नहीं, ठीक है। Now, bacteria can be classified as two types on the basis of the difference in their cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram-Base। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही ग्राम स्टेन का जो हम पढ़ने वाले डिस्कवर किया है, ठीक है। ग्राम स्टेन मतलब जिन्होंने ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हम लोग अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे समझ पाएंगे देखते हैं। देखो ये जो हमारे ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर है वो दो टाइप के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, एक जो होता है रफ़ और एक जो है स्मूथ। अगर रफ़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि आयोडीन देता है, ग्राम से आयोडीन और सॉरी ग्राम स्टेन एक होता है, एक आयोडीन होता है। मैं उसका एक परफेक्ट ना फ्लो चार्ट जो है मैं इधर अटैच कर दूँगी, देख लेना। ये जो इधर है फ्लो चार्ट देख रहे हो, इसके अंदर क्या होता है, जो रफ वाला है वो बहुत सारा स्टेन एब्जॉर्व कर लेता है। तो एज ए रिजल्ट जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये डार्क कलर का दिखता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्मूथ वाला ज़्यादा नहीं लेता है, अच्छा कम लेता है, तो वो पिंकिश और रेडिश में डिफाइन होता है। तो वो हम लोग देखते हैं, जो डार्क कलर होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंकिश कलर होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव। यही है मेनली। अभी हम देखते हैं जो डार्क मैंने बोला लूज़ है उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं और जो थिक एंड टफ है उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। The cell wall is determine the shape of the cell and provide the strong structural support in order to prevent the bacterium from the bursting and collapsing। cell wall का क्या होता है, वो structural support देते हैं ना, हम लोगों को पता है, वो ही लिखा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, इट इज़ द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस मतलब पता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो सभी चीज़ों को अपने अंदर नहीं घुसने देता है, वो ही है। इन तीनों का फंक्शन बताया गया है बस। A special membranous structure is the mesosome, which is मैंने बोला है mesosome क्या है, और mesosome का भी एक्सटेंशन होता है, वो होता है कि वेसिकल, ट्यूबल्स एंड द लेमेलाइड, ओके। एक क्या हेल्प करता है, दे हेल्प इन दैट ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन। वो जो 3 extensions of mesosome है, that is a vesicle, tubule and lamella, they help in the cell wall formation, DNA replication and the distribution of the daughter cell। They also help in that of the respiration secretion process in order to increase the surface area of the plasma membrane and that of the enzymic content। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are the other membranous extension into the cytoplasm which is known as that of the chromatophore, which contain the pigments। pigments contain करते मतलब in prokaryotes like that of the cyanobacteria में ये चीज़ होता है कि folding कौन करता है, chromatophore। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब बैक्टीरियल सेल क्या होता है, एक जो चल सकता है और दूसरा जो चल नहीं सकता है, वो कहते हैं जो चल सकता है उसको मोटाइल कहते हैं, जो नहीं चल सकता है उसको नॉन मोटाइल कहता है, बस दैट्स ऑल।
एंड देन बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। जो फ्लैजेला का डायग्राम है ना परफेक्ट है, जो इधर डिफ्रेंशिएट करके दिया गया है, मैं इधर पेस्ट कर दूंगी इसके अंदर, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कहता है। द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट जो होता है फ्लैजेला के अंदर वो लॉन्गेस्ट पोर्शन का है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम दैट ऑफ द सेल टू द सर्फेस, वो सेल सर्फेस से आउटसाइड में एक्सटेंड करता है, ठीक है। और बिसाइड फ्लैजेला, पिल्लाई एंड द फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोर्टेलिटी। याद रखना, फ्लैजेला के अलावा भी पिल्ली एंड फेम्ब्री है, बट ये मोर्टेलिटी के लिए हेल्प नहीं करता। मोर्टेलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। पिली आर द इलोंगेटेड ट्यूबलेस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन। और फिम्ब्री जो है, फिम्ब्री आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग ऑफ दैट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प एंड टू अटैच दैट ऑफ द बैक्टीरिया इन दैट ऑफ द स्ट्रीम्स और दैट ऑफ द होस्ट टिश्यू। फिम्ब्री का मेन जो काम है क्या है, फिम्ब्री का काम है बैक्टीरिया है और ये रॉक कुछ है, उसके साथ जो अटैचमेंट कौन कराते हैं, उसके साथ अटैचमेंट कराता है ये फिम्ब्री, अटैचमेंट के लिए काम आता है फिम्ब्री। और जो पिली का है एक स्पेशल प्रोटीन है, वो प्रोटीन का नाम है लीन, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे आज के क्लास के लास्ट सब टॉपिक में, दैट इज़ राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़। अभी हम लोग आगे राइबोसोम के बारे में जो प्रेजेंट है इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक में, और इधर हम लोग प्रोकैरियोट राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो साइज़ होता है राइबोसोम का वो है 15 नैनोमीटर থেকে 20 नैनोमीटर इन साइज, एंड दे आर मेड अप ऑफ द 2 सब यूनिट 50 and 30s which in turn present together 70s. There is no maths or addition present over here. It's just the 2 subunit of the ribosome, which is of smaller is that of the 30 and the larger is of the 50s, and all together it is that of the 70s, and s is that of the subjects unit, okay. And then prokaryotic ribosomes are that of the site of protein synthesis. We all know that several ribosomes are attached to that of the same age. This is the ribosome and this is that of the mRNA, and they will be attached together. If they attach together, they will form a body known as the polyribosome or polysome, and this will help in order to translate the mRNA into protein, and that's the exact way of that of the ribosome in order to secrete protein. Let's move towards the inclusion bodies. Inclusion bodies. They are the reserve material in the prokaryotic cell which are stored in that of the cytoplasm in the form of the inclusion bodies. It is the cytoplasm, and these are the dotted structure are that of the inclusion bodies. They stores the reserved material in that of the prokaryotic cell, okay. They are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm, as you can see, and there are some example of the inclusion bodies, that is the phosphate granules, cyanophagein granule, glycogranules, gas vacuoles, which are found in the blue green and purple green bacterium. I hope this much is very clear to all of you, and in the next class we will do the MCQs from up to the ribosome and inclusion bodies, and after the MCQ session in the next to next class we will going to start in with eukaryotic cell. If there is any problem regarding today's lecture, please let me know. Please feel very free to comment, and I will respond to each and everyone. And stay very happy, tensionless, and also in a good mood, and please be consistent about your studies. बिकॉज क्या होता है ना, पहले के टाइम पे बहुत होता है कि जोश, हाँ कर लेंगे, बट आगे जाके थोड़ा वो जोश से कम होता जाता है, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत मतलब की होता है इस पीरियड के लिए। और एकदम आप लोग अकेले नहीं हो, मैं हूँ आप लोगों के साथ, एक साथ क्रैक कर लेंगे, ठीक है। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक अगेन. गुड नाइट, स्टे सेफ.